Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss the topic of electromagnetism, and it is unit number 8 of MDCAT syllabus. So let's start this discussion. Question number 101. A conductor of length L has a current I passing through it, and it is placed parallel to magnetic. When a current carrying conductor is placed parallel to magnetic field, we have to find the direction of the force. So the formula is F equals ILB sine 0. Sine 0 is 0, so its force will be 0. The option is clear. Question number 2. A uniform magnetic field will cause a charge to move in a circle if the circle is moving. Uniform magnet will cause a charge to move in a circle. Charge particle only move in a circular path when the charge enters perpendicularly to field lines. और उसकी field strength भी constant होनी चाहिए. So answer is A. For example, this is the magnetic field. This is the page, and you introduce a charged particle like a proton or electron. So according to Fleming left hand rule, it will experience a force in the upward direction. So it will rotate in a circular path. So it only happens when the velocity of charged particle is perpendicular to field lines. जी सर जी बेटा क्वेश्चन नंबर 103. The ability of a material to conduct magnetic flux through it is magnetic flux. This is permeability. Permeability of that medium. The energy stored in an electromagnetic field or electromagnetic field, electrostatic field or electromagnetic field is called. The energy which is stored in the electrostatic field is always a potential energy. ये तो कोई टर्म ही नहीं है, और stored में kinetic energy नहीं होती, rest energy भी कोई टर्म नहीं है. So option is C. 105. A straight conductor carries current vertically upward. Point P and Q respectively to the east and west of the conductor. How P and Q are related in the terms of magnetic field. P and Q are at the same distance. The magnetic field due to straight wire is mu naught I by 2 pi r. So when r is same, then magnetic field will also be same. So answer is C. 106. An electron and proton with equal momentum enters perpendicularly to magnetic field. Then the path of proton shall be more curved. Basically, we can use this formula: E by m equal V by dr. If you multiply m on this side, then radius will be equal to mv by ev, or momentum by ev. So proton and electron have equal momentum. It means this value is constant. Magnetic field is also same. Charge on both proton and electron is also same. Both are equally curved. So the answer is C. Question number 107.
A straight wire of length 0.5 meter carrying 1.2 ampere current the magnetic field perpendicular to length of wire the force. You will apply this formula F equal ILB sine theta. ILB sine theta. So answer is 1.2 meters. In case of straight conductor, magnetic lines of force are circular. The magnetic force existing between two infinite parallel conductors is inversely proportional to the distance. और straight wire की magnetic field का formula ये होता है mu naught I by 2 pi r. Which among the following quantities is not affected by magnetic field? Stationary charge, because stationary charge से कोई force act नहीं करता. Magnetic field मूविंग चार्जेस क्रिएट करते हैं, स्टेशनरी चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट भी नहीं करते, और अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आप चार्ज को रख दें तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी. According to Fleming's left hand rule, the index finger denotes the index finger denote direction of magnetic field. A is the right answer. Because F E I, so thumb indicates direction of force, index finger represent direction of magnetic field, and the second finger, the middle finger, represents direction of current. So index finger पूछ लिया तो answer is A. If net force is zero on a particle in magnetic field, what is the relationship between velocity and magnetic? Net force zero तब होती है जब किसी चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इक्वल हो जाते हैं, इसलिए वेलोसिटी सेलेक्टर से दिया गया. मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है QVB, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला QE, तो वेलोसिटी आ जाएगी E by B. E by B. B is the answer. When a bar magnet is broken into two pieces, which of the following are? जब बार मैग्नेट्स को तोड़ते हैं ना तो नॉर्थ और साउथ पोल अलग अलग नहीं होते, दोनों पीसेस में नॉर्थ और साउथ पोल होगा, वो दोनों अलग अलग मैग्नेट्स होते हैं. आंसर there is a force of attraction between two current carrying conductors when the current in them is in the same direction. सेम डायरेक्शन में वो अट्रैक्ट करती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करती हैं. 115. Two particles have the ratio of velocity 3:2 on entering in the field. They move in the different circular path. The ratio of their radii. Two alpha particles. Both particles have same mass. So once again we use this formula. mv by EB. Both particles have same mass because both are alpha particles. Both mass have same charge because both are alpha particles. So radius and velocity becomes equal. तो जो velocity की रेशियो होगी वही रेडियस की रेशियो होगी. सो आंसर इज 3:2. तो velocity भी 3:2 है तो रेडियस भी 3:2 होगा. An electron and proton enter a magnetic field perpendicularly. Both have same kinetic energy. Which of the following is true? अच्छा, अब इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, तो बात ये हो रही है कि उनमें से कौन सा कर्व होगा कौन सा नहीं होगा. तो आप इस पे ये वाला फार्मूला लगा दें, 2m काइनेटिक एनर्जी तो अब देखिए प्रोटॉन फिर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी सेम होता है, ई भी सेम है, काइनेटिक एनर्जी भी सेम है. तो इसका मतलब है जिसका मैस ज्यादा होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा तो वो कम कर्व हो जाएगा. बेसिकली रेडियस और कर्वेचर एक दूसरे के इनवर्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन का कर्वेचर, द ट्रेजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस कर्व
The trajectory of proton is less curved. E is the right answer. Because प्रोटॉन का mass हैवी है, तो उसका रेडियस ज्यादा होगा। मीन्स अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपने एंटर किए हैं, तो अगर एक प्रोटॉन यूं रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यूं रोटेट करेगा, तो यू कैन क्लियरली सी कि इसका रेडियस कम होगा, तो उसकी कर्वेचर ज्यादा होगी, प्रोटॉन की कम होगी। 117, when the magnetic flux said to be positive at 0 degree, cos flux का फार्मूला ई ए कॉस थीटा होते हैं, कॉस 0 1 होता है, प्लस कॉस 180 -1 होता है, तो ये दोनों जीरो होते हैं, कॉस 360 और कॉस 90 जीरो। If the direction of field and area vector in opposite, then magnetic flux is negative, क्योंकि ये cos 180 हो जाएगा, cos 180 -1 होगा।
जी बच्चों, क्वेश्चन 119. If a proton enters in a region where electric and magnetic fields are parallel to its motion, then it will. If a proton enters in a region where electric and magnetic fields are parallel, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, और प्रोटॉन भी इनके पैरेलल जा रहा है. अब देखें, मैग्नेटिक फील्ड तो कोई फोर्स नहीं लगाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है फोर्स का क्यू वी बी साइन थीटा. तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स तो हो जाएगी जीरो. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है. तो अब इसका मतलब है ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये स्पीड अप होगा, क्योंकि मोशन की डायरेक्शन के अंदर ही, डायरेक्शन में ही फोर्स लग रही है. तो आंसर इज चार्ज. A circular loop of area 200 centimeter square lies in XZ plane. अच्छा, अब इसका वेक्टर जो है वो y एक्सिस के लॉन्ग होगा, j के लॉन्ग. देन यूनिट, क्योंकि वेक्टर एरिया उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. अब प्लेन अगर एक्स जी है, तो उसका नॉर्मल बनता है y एक्सिस. तो वो कह रहा है फ्लक्स निकाले, तो फ्लक्स होता है b डॉट ए. आप इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले लें. डॉट प्रोडक्ट का मेथड मैंने आपको बताया था, 0.3i प्लस 0.4j डॉट 200 j. अच्छा, अब i डॉट j तो जीरो होता है, तो j डॉट j करें, 200 इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴. अच्छा, अब ये पॉइंट खत्म करेंगे तो ये बन जाएगा कि -1 और इसमें ऐड कर दें, तो ये -5 कर दें इसको, ये बन जाएगा 800 इंटू 10⁻⁻5. टू जीरो कैंसिल करें, आई थिंक सी इज द राइट आंसर. 0.008 वेबर. 121. लेट मी erase it. A charged particle is moving along x-axis and magnetic field is moving along x-axis and magnetic field is along y-axis. Direction of magnetic force acting on it is. अब चार्ज x-axis के along जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो y-axis के along है, तो फोर्स जो है वो पॉजिटिव z-axis के along लगेगी. जी 122. ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप निकाल. 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स. अच्छा, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर 10⁻⁴ गॉस होता है, तो ये 10⁻⁻³ गॉस आएगा. ये 10⁻³ गॉस, 10⁻³ गॉस, यस, क्योंकि 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर 10⁻⁴ गॉस होता है. तो 0.1 है, तो इसमें से आप 1 कम कर लें, दैट वुड 10⁻3. 123. An electron is moving in a circle of radius r in uniform magnetic field. Suddenly the field is reduced to p/2. The radius of the circular path becomes. तो mv/ev ये फार्मूला लगेगा. अब b और r इनवर्स हैं, b को हाफ करेंगे, रेडियस डबल हो जाएगा, तो आंसर इज 2r. A hydrogen atom that has lost its electron in moving east in a region where magnetic field is directed towards from south to north, it will be directed. तो मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे बना लें आप, साउथ टू नॉर्थ. अब द हाइड्रोजन एटम दैट लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा ना, तो वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये अप आएगी, इसकी डायरेक्शन आएगी अप, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से. 125.
A loop of radius 1 meter is placed in a inclined plane 60 degree with magnetic field. Corresponding flux will. तो बी इसमें 100 है, एरिया को आप पाई आर स्क्वायर कर लें, कॉस 60 1/2 होगा। जब ये 1 है, ये 3 ले लें, तो 300/2 इंटू 1 स्क्वायर, तो 150 के अराउंड जो आंसर होगा वो होगा ये आंसर। 126 का सी आंसर है, ये बहुत दफा मैंने बता दिया, ये ऊपर लिखा भी हुआ है, आप यहाँ से देख लें। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग masses respectively enter in a region of uniform magnetic field with same velocity. The ratio of their radii. Let's have same masses. So R equal mv/ev. अच्छा, चार्ज सेम है, बी सेम है, वेलोसिटी सेम है, तो रेडियस और मास एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उनकी जो रेडियाई की रेशियो होगी वो उनकी मैसेज की रेशियो के इक्वल होगी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसी तरह इनका मैस आ जाएगा, मैं me/r p, यानी re/r p इक्वल होगा me/m p। 127 का सी ऑप्शन है। 128 मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर होता है, स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड पूछी हुई है। A conductor of length 1 meter carrying current 1 ampere, the magnetic force acting on it is 1 Newton. अब ये फार्मूला यूज करेंगे, F इक्वल्स ILB वेबर एम्पेयर पर मीटर इज इक्वल टू वेबर एम्पेयर पर मीटर इज इक्वल टू वेबर इंटू एम्पेयर पर मीटर। अच्छा, अब वेबर क्या चीज होती है? टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला क्या होता है? न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ये सिर्फ मैंने टेस्ला की जगह लिखा है, और अब मीटर और एम्पेयर वैसे ही लिखे। अब आप क्लियरली देख लेंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर इज न्यूटन। तो 130 का सी है। अच्छा जी, a force experienced by current carrying conductor is, all of these आएगा, F equal ILV। magnetic field at ground due to 10 meter high power line having current of 200 ampere। एक पावर लाइन है, ये ग्राउंड है, अब इसके अराउंड करंट फ्लो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसका जो रेडियस है वो 10 मीटर बन जाएगा, इसकी जो हाइट है वो इसका रेडियस बन जाएगा। और अब आप ये फार्मूला लगाएंगे, B इक्वल्स म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। आपको पता है म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। तो 132 का आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करें।
म्यू नॉट की वैल्यू पुट करें। आंसर आएगा इसका 8। 133, if a current of 1 ampere flows through a conductor of length 1 meter placed at right angle to magnet, then the strength of magnetic field will be। अगर इसको F इक्वल आई एल बी से कर लें, F इक्वल आई एल बी। अब इसमें देखिए उसने करंट भी 1 मीटर पूछा है, कहा है, ये देखें, और उसने लेंथ भी 1 मीटर। अब ये दोनों 1 1 कर लें, अगर 1 into 1 into B, तो B फोर्स के इक्वल आ जाएगी, इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द। A charged particle of mass m charge cube travels on a circular path of radius r that is perpendicular to magnetic field. The time taken by the particle to complete one revolution is। टाइम पीरियड का फार्मूला लगेगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये आंसर ए। If north pole of a bar magnet is approaching the coil, polarity of the face of coil opposite to that approaching pole of magnet becomes। नॉर्थ के सामने नॉर्थ आएगा तो जो ऑपोजिट होगा वो साउथ आएगा। वैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्वेश्चन है, इंडक्शन का। सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर all of these। In a current carrying so long solenoid, the magnetic field produces does not depend upon radius of the solenoid। तो इसका फार्मूला होता है B इक्वल म्यू नॉट एन आई बाई एल। इसमें रेडियस नहीं आ रहा, तो रेडियस पे ये डिपेंड नहीं करेगी। न्यूट्रॉन्स ऑफ आर प्रोजेक्टेड आएगा यहाँ। एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री द पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी स्ट्रेट। क्योंकि न्यूट्रॉन है, इस पे चार्ज जीरो होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगी। तो जब फोर्स नहीं लगेगी तो वो स्ट्रेट जाएगा। A straight solenoid 20 centimeter length has 800 turns. The magnetic field at the center of solenoid, the current through solenoid is V equal mu naught n I by L। ये फार्मूला लगाएं 139 पे, और इसका आंसर होगा सी। फार्मूला मैंने लिख दिया, इसको सॉल्व कर लेना। A particle of charge 1 coulomb, I think this is 1 coulomb, is moving through a velocity V enters a magnetic field as shown in the figure, and the particle gets deflected. The path indicates would be traveled by। अच्छा, अब देखें इस पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं, तो अपनी इंडेक्स फिंगर जो है वो आप मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन की तरफ करें, वेलोसिटी इधर करें, तो थंब अपवर्ड आ रहा होगा, लेकिन ये अपवर्ड तब जाता, इसको अपवर्ड जाना चाहिए था अगर ये प्रोटॉन होता। अब ये डाउनवर्ड जा रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन है। आंसर इज बी। डायग्राम शोज द इलेक्ट्रॉनिक करंट इन द कंडक्टर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से होगा। ये होगा नॉर्थ से साउथ की तरफ इंडेक्स फिंगर करें, मिडिल फिंगर को अपवर्ड करें, तो थंब इनटू द पेज आ रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, इसका मतलब है कन्वेंशनल डाउनवर्ड होगा तो ये आउट ऑफ द पेज आएगा। यानी अब आपने इंडेक्स फिंगर को नॉर्थ से साउथ करना है अपने राइट साइड पे, और जो मिडिल फिंगर है, सेकंड फिंगर है, उसको डाउनवर्ड करना है, तो हम देखें आउट ऑफ पेज आ रहा होगा। तो इसमें उसने इलेक्ट्रॉनिक करंट कह के आपको कंफ्यूज किया। ई ओवर एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डैश दैट ऑफ प्रोटॉन। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रॉन का मैस कम होता है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो इसकी ई ओवर एम ज्यादा होगी, ग्रेटर आएगा, लार्जर। द ई ओवर एम रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ई ओवर एम इक्वल वी ओवर बी आर होता है, या इसका वोल्टेज की फॉर्म में फार्मूला होता है 2v बाई बी स्क्वायर आर स्क्वायर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। आई थिंक इसका आंसर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेटिंग वोल्टेज ज्यादा क्लियर होगा, ये आंसर है। एन एम मीटर हैव रेजिस्टेंस स्मॉलर देन गैल्वेनोमीटर।
स्टार टूथ वोल्टेज कहते हैं साइनोसाइडल वोल्टेज को, इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम एंड ड्रॉप्स टू जीरो, increases linear with time and drop to zero, decreases linearly with time and drop to zero, never drop to zero. Never drops to zero. और ये ऑप्शन रिपीट भी हो रही है। आई थिंक इसके ऑप्शन में कोई गड़बड़ है, इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेट कर देते हैं, ये क्वेश्चन क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा। When we insert a piece of iron, a region where it experiences with perpendicular electric and magnetic forces of magnitude 12 and अच्छा अब परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेज हैं तो इनका अगर वेक्टर सम लेंगे तो टोटल फोर्स आएगी, इसको लॉरेंट्ज फोर्स भी कहते हैं। आप इस तरह करें ना, 12 का स्क्वायर लें और 5 का स्क्वायर लें और इसका स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि नेट फोर्स पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी, इसका आंसर आ जाएगा 13 होगा। The E over M ratio of charged particle entering in a magnetic field can be determined by both A and C. मैंने ऊपर लिखे हैं दोनों फार्मूलाज। To convert galvanometry into ammeter, we connect low resistance in parallel. Magnetic field outside the solenoid is non-uniform and weak. B is the right answer. और two wires carrying currents in opposite direction will repel. Same direction में attract करती हैं और opposite direction में repel करती हैं। So student, this is all about today's discussion of electromagnetism. I hope कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप you can text me or you can WhatsApp me on this number. Thank you so much. God bless you. Allah.